Welcome back. You're watching our continuing coverage of India Today's mission. Iraq India Today has become the first and the only news channel to travel down to the exact place in Iraq where Sushma Swaraj and the Indian government believes the 39 missing Indians were being held hostage. To our horror and dismay, we discovered that that prison where these hostages were believed to have been housed no longer exists. I bring you now an exclusive interview with Harjeet Masih. Harjeet is the sole survivor, the one who got away. He describes his journey, he describes what he saw, and he explains why he believes that these 39 Indians may no longer be alive. He's speaking to my colleague Anand Patel in his village. Here it is. सर सरकार तो यही कह रही है लोगों को कि हाँ वो सही सलामत है, जिंदा है, वापस आ जाएंगे। सर मुझे तो कोई पता नहीं है कहाँ है किधर नहीं। ठीक है जी सर। लेकिन आप ये कह रहे हो कि जब आप लोग को 80 लोग थे करीब, उसमें से जो बांग्लादेशी थे उन लोग को छोड़ दिया था उन लोगों ने, और आप बांग्लादेशियों के साथ ही वापस आए? हाँ ना सर, उन लोगों को पहले छोड़ दिया ना लोगों ने, हमें तो अलग ले गए गाड़ी में बंद करके। उनको तो वैसे सर मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ थे वो सब वैसे झूठ झूठ बोला कि हाँ वैसा हूँ। पता ही है आपको सब कैसे कैसे बोला है मैंने। तो वो तो सर मुझे कंपनी में मिले बाद में रात को। अच्छा हाँ। तो जो हिंदुस्तानी थे उनको अलग कर लिया क्योंकि वो गैर मुसलमान थे? हाँ सर, वो क्योंकि मुसलमान ही थे, क्योंकि जो बांग्लादेश के वो सभी मुसलमान थे, नमाज पढ़ते थे और इसलिए उन लोगों को अलग कर दिया। जो हिंदुस्तान के थे उनको अलग कर दिया, क्योंकि सर वो तो कोई नमाज पढ़ता ही नहीं है, कोई हिंदू है कोई है कोई है, इसलिए उन्होंने सोचा कि हाँ ये मुस्लिम नहीं है तो इन लोगों को मार देते हैं। ठीक है। हाँ। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या चांसेस है वहाँ पे, जो हालात थे वहाँ पे तुमने देखा था, क्या कोई चांस है वहाँ से जिस तरह की जंग छिड़ी हुई है, जिस तरह से बर्बाद हो गया है पूरा वो इलाका, क्या लगता है तुम्हें कि वहाँ कोई बच पाया होगा? सर मैं फिर वही कह रहा हूँ सर, बार बार मैं वो नहीं कह सकता, क्योंकि सर वो जो लोग है ना, वो लोग तो अपने उधर के लोग ही मारे जा रहे हैं, तो इंडिया वाले को कहाँ छोड़ेंगे वो लोग। उन लोगों ने अपने भी उधर बहुत लोग मारे, लोकल लोगों को मार दिया उधर लोगों ने। तो इसलिए सर चलो मैं कहना नहीं चाहता सर, तो फिर भी सर मैं कह रहा हूँ कि लोगों को मेरे सामने मारा है। जी सर। और कोई उम्मीद नहीं कि कोई बच पाया हो उनमें से, जैसे आप बच गए? जैसे हाँ सारे तो मैं पहले कह चुका हूँ, हो सकता है कोई एक दो बचाओ, क्योंकि सारों की मैं तो नहीं बोल सकता कि बची होंगी, क्योंकि हो सकता है एक दो बचाओ। This is disturbing because this is the eyewitness account of the sole survivor. And I have a couple of questions, Anand Patel. I'm not clear about whether when he says he saw people being killed, does Harjeet mean that he saw these 39 people being killed with his own eyes? Or he's saying that he thinks that these people are dead, but the people he saw being killed were others? What's the specific answer to that? Well, Rahul, I spoke to Harjeet when he came back from the preventive detention of the government of India in 2014. Remember, for 1 year, when he came back to India in July 2014, a month after this entire incident took place, he was in preventive custody of the government of India, Ministry of External Affairs. But in 2015, when he came to Chandigarh and spoke to the journalists there, I was one of the first journalists who spoke to him, and he is sticking to what he said then, even after 2 years of the entire story. He's saying the same things what he told us back then in 2015. He's narrating the entire sequence of events, that how on the 11th first the ISIS people came to them at the construction site where these people were there, and then they came back again in the night and abducted them. Later on the 15th, they separated the Indians from the Bangladeshis and then packed the Indians in a container and took them to a desert, Badoosh Desert, and then asked them to kneel down and shot them from behind. What Harjeet is saying is that he was lucky that a bullet just bruised through his leg and he just got a minor injury, but everybody was falling around him and he also fell on the ground and he was covered by a couple of men, and that's the reason why he survived. The ISIS men thought that he's also dead, as were all other 39 Indians. And then after some time, when these people went away, Harjeet
he gained conscious and he called for his men, but he was telling me the names of his friends who were also among the 39 Indians who are missing, but none of them responded. He narrated me how they were all lying in a pool of blood, and then he tried to run away from that side, and while reaching towards the highway, he says that he saw many corpses lying, many mass graves, many dead bodies rotting all around, and he was all confused that he's come back to the same site where this shootout took place. So he's sticking to what he's been saying for the last 2 years. And this is but disturbing, the families are not because it raises questions about whether there has been full disclosure by the Indian government. Remember, we've seen Sushma Swaraj, we've seen General VK Singh say that Iraqi intelligence is telling them that these Indians could still be alive. But Anand Patel tracked down an eyewitness, a sole survivor, who's saying completely the opposite. He in fact says he saw these Indians being killed in front of him. Had escaped and was brought back to India, and the first statements that he gave with regards to having witnessed the killing of the other 39, it really created an uproar here. And then we had the Indian government and establishment asking him not to give interviews, not to speak to people because it's a sensitive matter. Even legally speaking, Rahul, for any person, any Indian legally who goes missing, to declare him dead, one, you need proof, or you need a certain amount of years to pass by for the government to declare the person dead. Hence, the Indian establishment really careful and cautious over here with no evidence coming from Iraq. But I remember very clearly how he was. This one eyewitness who returned from Iraq was asked not to speak and not to give statements regarding the death or witnessing the killing of the other 39 Indians. And that's the reason why even when he's speaking to us today, he says, "Main aur kya bolu? I can't say more than what I've already said in the past." I want to play out now a reaction coming in from General VK Singh. General VK Singh traveled to Mosul in Iraq just last week, and he was there speaking to Iraqi intelligence, Iraqi government officials. Amongst his missions was to find out more about these 39 Indians. Our Ministry of Home Affairs correspondent Jiten Bahadur Singh spoke to General VK Singh. This is what the minister had to say. देखिए, जो उनके NSA के द्वारा पुख्ता जानकारी दी गई वो ये है कि पहले उनको पकड़ा गया मोसुल एयरफील्ड के पास से, उसके बाद एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम कराया गया। इलाका अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पश्चिमी मोसुल के अंदर अभी भी क्लियरेंस चल रही है। उसके बाद बदूश की क्लियरेंस होगी। जब तक इलाका पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाता तब तक ये कहना मुश्किल है जेल में है नहीं है, जेल से और कहीं भेज दिया गया है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। Okay, I've got some political reactions coming in. Akali leader Chandu Majra joining us on this broadcast. So very disturbing reports coming in this morning from Badush near Mosul in Iraq, which is where the Indian government believed that these 39 Indians were being held hostage. We've actually gone to ground zero, to the exact area where these Indians were believed to have been kept hostage. To our horror, we've discovered that that detention center itself doesn't exist. What's the Akali party making of this? देखिए, आज बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ है जो मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी है। जो हमारे भारतीय और उसमें ज़्यादातर पंजाब के लोग थे, बॉर्डर बना रखे थे इजराइल में, इराक में, तो इराक के विजिट करने के बाद भी हम समझते थे कि वहाँ उनको जिंदे होने की हमें अपेक्षा थी। मगर आज की न्यूज़ ने तो बहुत ज़्यादा हमें इस बात का बहुत ही नहोशी है। और मुझे इस बात का भी दुख है कि भारत सरकार क्लैरिटी नहीं ले रही इसमें क्या मजबूरी है छिपाने की। अगर वो जिंदा नहीं है तो उसकी भी रिपोर्ट देनी चाहिए। अगर जिंदा है तो उसके कोई तथ्य सरकार के पास हैं, वो सामने रखने चाहिए थे। हम सब लोग इसमें बहुत परेशान हैं और इसमें कंफ्यूजन भी है कहीं ना कहीं भारत सरकार की ओर से भी, और मैं समझता हूँ हमारे लोगों में भी इस बात की चिंता है। आज की न्यूज़ बहुत ही मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है और इस पे मैं Mr. Majra, the government should respond because last Sunday
सुषमा स्वराज ने बयान दिया कि ये सारे लोग बदूश की एक जेल में हैं, हम लोग उस जेल में गए, वो जेल ही एग्जिस्ट नहीं करती, वो जेल ही तबाह हो गई जब आईसिस वहां पे थी। आपके हिसाब से गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए? यही तो आश्चर्य की बात है। माननीय मंत्री जी तो कह रहे हैं कि जेल में है, आज न्यूज़पेपर में आ रहा है जेल है नहीं है, तो इसका स्पष्टीकरण हम मंडे को लेंगे। माननीय मंत्री जी को मिलकर भी उनसे पूछेंगे कि असली तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है। इसमें किसी को थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं अगर अपेक्षा है तो वो भी सामने रखनी चाहिए। जब जेल ही है नहीं, जिस प्रिजन की बात कर रहे हैं अभी प्रिजन में है, वहाँ तो जेल का नाम निशान ही है नहीं, जैसे आज न्यूज़पेपर में आया, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं वो जिंदा होंगे। तो मुझे इस बात का आश्चर्य है कि भारत सरकार तथ्यों को सही रूप में क्यों नहीं रख रहे, समझ हो रहा है। इस बात पे हम जरूर माननीय विदेश मंत्री जी से मंडे को मिलेंगे और स्थिति स्पष्ट कराएंगे। Okay, Chandu Majra ji, thank you very much for joining us. The Akali and these are allies of the government too, very disturbed with the fact that the government isn't making a full disclosure. He's saying if that prison itself doesn't exist, then why is the government telling Indians that this is where the Indians were being kept hostage? More political reactions coming in this morning. Let's now go across live to senior Aam Aadmi Party leader from Punjab, Bhagwant Mann, joining us on our broadcast this morning. Bhagwant ji, very, very disturbing information this. Our correspondent who travelled all the way to Mosul and then onwards to Badush finds out that that one prison where these Indians were believed to have been held captive by the Indian government, that prison itself doesn't exist. वो जेल ही तबाह कर दी आईसिस ने जब वो वहां से जा रहे थे। आप और आम आदमी पार्टी का और आपका क्या रिएक्शन? देखिए राहुल जी, ये 3 साल पहले बहुत ही सीरियसली इस केस को हमने लिया था। पार्लियामेंट में मैंने सवाल भी पूछा था, जिसके जवाब में सुषमा जी ने लोकसभा में ऑन द फ्लोर कहा था कि वो मूसल में हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक वो मूसल में हैं और मूसल पर क्योंकि सरकार का कब्जा नहीं है, ISIS का है, इसलिए जब मूसल पर सरकार का कब्जा आएगा तब बात करेंगे। 20 बार, एक बार नहीं 20 बार मैं उनकी फैमिलीज को लेके सुषमा जी को मिल चुका हूं। और जो एक हरजीत मसीह नाम का लड़का जो बच के आया था उनमें से, उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो वो उनमें से कोई जिंदा नहीं है। लेकिन हमने सरकार से पूछा, सरकार कह रही जी हमारे पास उनके मरने की भी खबर नहीं है। इसलिए हम तो अभी मैंने रिसेंटली BK सिंह जी से मैंने बात की थी पार्लियामेंट के सेशन में, कल की बात है। तो उन्होंने कहा जी मैं मूसल गया था, मूसल के बाद बदूश से पहले वापस आना पड़ा क्योंकि बदूश में लड़ाई चल रही है और वहां पे जा नहीं सकते। तो ये सरकार क्यों नहीं बता रही कि वो कहाँ हैं? या तो सरकार ने पहले ऐसा बयान दे दिया कि अब यू टर्न नहीं ले सकते, वो कारण नहीं पता चल रहा कि उनके घर वाले जो है राहुल जी, वो ये कह रहे हैं, जो 39 मोस्ट ऑफ देम आर पंजाबी, वो ये कह रहे हैं कि भले ही उनको 6 महीने बाद ले आना भारत, हमें उनको भारत लाने की जल्दी नहीं है, लेकिन कम से कम किसी न किसी से बात तो करवा दो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा सबूत तो दे दो कि वो बिल्कुल सही सलामत है। वो भी नहीं प्रोवाइड करवा रहे। इसका मतलब अब जहां जहां IS का कब्जा है वो वहां उनको, हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं, विदेश मंत्रालय वहां उनको ले जा रहा है। पहले मूसल में थे, अब मूसल में जो है इराक का कब्जा हो गया, प्रधानमंत्री ने बोल दिया, इराक के प्रधानमंत्री ने कि हमारा कब्जा है। अब कहते हैं जी वो बदूश में है क्योंकि बदूश में IS का कब्जा है। जब बदूश पर आपने पता नहीं हमारी रिपोर्ट देखी कि नहीं, इंडिया टुडे हैज बिकम द फर्स्ट चैनल, इनफैक्ट वी आर द ओनली इंडियंस टू ट्रैवल टू बदूश। हमारी लड़की, अभी तस्वीरें आप चैनल पे देख रहे हैं, वो उस जगह पे गई, वहां पे लैंडमाइंस थी, गोलियां चल रही थी, उस सब खतरे के बावजूद वो उस जगह पे गई जहां पे अब तक सरकार भी नहीं पहुंच पाई, और वहां पे उसने पाया कि वो जो जेल है जहां पे इन इंडियंस को कथित तौर पे रखा गया था, वो जेल ही तबाह हो गई, वो जेल ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हर रोज नया बहाना, हर बार नया बहाना आ जाता है। इसके लिए उनके घर वाले बहुत दुखी हैं। वो अभी रिसेंटली मिलके गए हैं विदेश मंत्रालय को। जब 3 बार मैं विदेश मंत्री से मिला हूं उनके घर वालों के साथ, इस तरह क्या कहा जाता है, दुआ कीजिए, पाठ कीजिए, अरदास कीजिए, वो जिंदा हैं।
कहाँ जिंदा हैं, कैसे हैं, किससे बात हुई, विदेश मंत्रालय की बात हुई? नहीं जी, हमें सोर्सेस से पता चला है, पता नहीं कौन से सोर्सेस हैं। सो मेरे ख्याल में सरकार को जवाब देना होगा कि 39 भारतीय नागरिक आखिर हैं कहाँ। उनको अभी बीके सिंह जी कह रहे थे कि एक हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन में उनको लगा लिया गया, फिर उनको जेल में भेज दिया गया। वहां पे हालात ऐसे हैं कि वो कन्वर्ट कर लेते हैं, वो AK-47 भी दे देते हैं कि चलो जी हमारे साथ जहाद में शामिल हो जाओ। तो कुछ पता ही नहीं सरकार, अगर विदेश मंत्रालय को कुछ नहीं पता तो आप बताइए कि कैसे वो दुआओं के सहारे जी रहे हैं उनके रिश्तेदार। के हिसाब से भगवंत मान जी क्या करना चाहिए? यूर प्रोमिनेंट लीडर फ्रॉम पंजाब, most of these Indians are from Punjab. What do you believe the Indian government should now be doing, sir? देखिए, अमेरिका का एक या दो नागरिक फंस जाते हैं तो उनका विदेश मंत्री खुद जाता है बगदाद। मैंने तो पार्लियामेंट में भी कहा था कि बगदाद क्यों नहीं जा, तो अभी विदेश राज्य मंत्री बदूश नहीं जा सके, आपके रिपोर्टर चले जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सरकार जो है वो सिर्फ लीपापोती कर रही है। कोई इसका डेफिनेट कोई हल, कोई जवाब ऐसा देना होगा उनको। We've heard from the Congress they intend to take this up in Parliament. Will you want that the Aam Aadmi Party also take this up in the Punjab Assembly, Bhagwant Maan ji? मंडे को हम आपके जो रिपोर्ट के आधार पर मंडे को ये मामला हम उठाएंगे। मैं जनरल मोशन दूंगा कि इस बात करो। हमारे 40 और 39 इंडियन नागरिकों का सवाल है, कहाँ है विदेश मंत्रालय? क्या विदेश मंत्रालय की तारीफें बहुत हो रही हैं कि हर ट्वीट का जवाब देते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये इनका कोई हल तो कीजिए ना, कोई डेफिनेट हल कीजिए। प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया का दौरा कर चुके हैं, इस मामले में भी उनके जो कोई ना कोई मित्र होंगे प्रधानमंत्री इराक के, या कोई उनके ऑफिसर या उनके मंत्री, तो उनसे पता कीजिए। बट सरकार अपने डिफेंस में कहती है, मेरी कल रात को ये स्टोरी चलाने से पहले सरकार के एक बहुत सीनियर ऑफिसर से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास कोई ये सबूत नहीं है कि वो जिंदा हैं, लेकिन हमारे पास कोई ये प्रमाण भी नहीं है कि वो मर चुके हैं। ऐसे में उम्मीद को बनाए रखना चाहिए। उम्मीद को आप क्यों तोड़ते हो? बिल्कुल सेम बात राहुल जी, बिल्कुल सेम बात लोकसभा में सुषमा स्वराज जी ने बोली थी कि हमारे पास उनके जिंदा होने का सबूत नहीं है, लेकिन हमारे पास उनके मरने का सबूत भी नहीं है, इसलिए हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसका मतलब उसी ऑफिसर ने लिख के दिया होगा। नहीं, अब देखिए किस ऑफिसर से आपकी बात हुई वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब सवाल बड़ा ये है, क्योंकि आप सवाल खड़ा कर रहे हैं विदेश मंत्री पर, विदेश मंत्रालय पर, क्योंकि उनकी तरफ से उनका कहना है कि जो संभव कोशिश है वो कर रहे हैं। इसी चक्कर में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह इराक भी गए थे और तमाम जो उन्होंने काम किया उसमें एक काम का बड़ा हिस्सा ये भी था, इन हिंदुस्तानियों के बारे में पता लगा ना। मेरे राहुल जी आप एक बात, मैं हरजीत मसीह नाम का लड़का जो बच के आया है, उसको गवर्नमेंट ने 4-5 महीने छुपा के रखा। क्यों? जब वो वापस आया, जब उसको छोड़ दिया, बेंगलोर ले गए थे उसको, जब उसको छोड़ दिया उसको बोले तुम कुछ ना बोलना, तुझे नौकरी देंगे, ये करें। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज भी वो काला अफगाना एक टाउन है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे रहता है वो। उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ में, वो मेरे घर पे आया था वो, कि मैंने ये बताना है सच। उसने कहा जी सभी को गोलियां मार दी, सबको मार दिया गया है, वहां लाशें पड़ी थी, मैं बच गया। उसने खुद अपनी टांग में गोली का निशान दिखाया। फिर वो ये कह रहा था कि मुझे ये बताने से क्या फायदा हो जाएगा। मुझे सरकार कह रही थी तुमने कुछ बताना नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस बात को वो छुपाना चाहते हैं। लीव इट देयर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भगवंत मान, सीनियर आप लीडर, सेइंग the Aam Aadmi Party will be moving an adjournment motion on Monday. The government will, mind you, have serious explaining to do on Monday, because we've heard from the Congress, we've heard from the AAP, they will be questioning the government on this. In India Today story bound to be raised in Parliament. I want to go across to Jeet Kumar. Jeet Kumar's son Parminder Kumar is amongst those who are missing. Jeet ji, हमारी ये रिपोर्ट दिखाती है कि जिस इलाके में सरकार मान रही थी कि इन हिंदुस्तानियों को बंदी बनाया गया है, वो जो जेल था, वो जेल तो आईसिस ने तबाह कर दिया। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन संभवतः मार्च में जब वहां पे लड़ाई हो रही थी, जब वो वहां से निकलने वाले थे, उससे पहले उस जेल को वो तबाह करके चले गए। हेलो जीत साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ रही। ये हमारी जो रिपोर्टर हैं जो गई बदूश उस जेल में जहां पे कहा जा रहा था कि ये 39 हिंदुस्तानियों को बंधक बनाया गया है, वहां पे उसने पाया कि वो जेल को तबाह कर दिया गया है आईसिस द्वारा जब वो बदूश से वहां जा रहे थे उससे पहले। अच्छा जी। अच्छा आपकी बात हुई सरकार में लोगों से, सरकार आपको क्या बता रही है, आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार हमारे को बता रही है कि वो पहले बोल रहे थे कि जो अपना चर्च है चर्च में रखे। अभी जो मीटिंग आखिरी को हुई है वो उसमें बोल रही है वो जेल में है, बदर जेल कोई है उसमें रखे हुए है। बोल रहे और 1-2 महीने के बाद ही बोल रहे पता लगेगा। वही हमारी रिपोर्टर उसी जेल में गई, वो बदूश की जेल है, वहीं पे हमारी रिपोर्टर गई और वहां पे उन्होंने देखा कि वो जेल एग्जिस्ट नहीं करती। हो ये सकता है, संभव है, ये इसको इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे आईसिस को बदूश से खदेड़ा गया इराकी आर्मी द्वारा, वहां पे वो अपने साथ में इन इंडियंस को ले गए, लेकिन जिस आखिरी पते पे ये माना गया कि ये सारे हिंदुस्तानियों को बंधक बनाया गया है वो एड्रेस तो अब एग्जिस्ट नहीं करता। वो जो जेल है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई है, तबाह कर दी गई। अच्छा जी। तो आपके हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि मंडे को इराकी विदेश मंत्री आ रहे हैं इंडिया। हाँ जी 24 को आ रहे हैं जी। हाँ जी 24 तारीख को विदेश मंत्री ने बोला, वो उनसे भी हमारे को कोई खबर मिलेगी आपको बताएंगे। चलिए जीत कुमार साहब, हमारी उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं तमाम जो हिंदुस्तानी हैं वो अभी भी सलामत हों, लेकिन जो हमारी रिपोर्ट है, द ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम इराक सजेस्टिंग दैट द सिचुएशन इज looking grim. We're slipping into a quick break right now. When we come back, we'll be joined by senior representatives from the Congress, the Aam Aadmi Party and the BJP as we look at what happens next on the back of this disturbing India Today ground report, which shows how that last known address of these 39 missing Indians has been razed to the ground. This is an agenda-setting India Today world exclusive. We'll have lots more reactions coming in when we come back on the other side of a very quick break. Stay with us.